when we see the Old Testament, you know, जब पुराना नियम देखते हैं, it was about Abraham, it was about Moses. अब्राहम और मूसा के बारे में था। So they tell you whatever they want to tell you directly. वो आपको जो बताना चाहते हैं वो डायरेक्टली बता देते हैं। And when Jesus comes and he speaks in parable. लेकिन यीशु मसीह जब हम सीधी सीधी बात नहीं करते, लेकिन दृष्टांतों में बात करते हैं। So we want to find why. तो आज हम ये पता करेंगे क्यों दृष्टांतों में बात करें। But before we start, we शुरू want करने to से know पहले what is parable. दृष्टांत क्या होता है, कौन बताएगा? Does anybody know what is parable? जिसको पता है हाथ खड़े हो जाओ और बताओ। Parable. क्या बात ये उदाहरण की तरह होते हैं। It's an example. और क्या कहते हैं, मतलब हम पूरी बात नहीं बताते कि छोटे में ही We do not tell the whole story, but in a short, इशारे की तरह समझा देते हैं कि but just by giving some signs, some symbols, some examples, you try to make the other person understand what you really want to say. Yes. और कुछ? It's in the line. Yes. काफी सही बताया। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? At least 90%. 90% तो बता दिया, 10% Yes. और Any other person who have known what is parable? we do not target the main person to which we are referring, Okay. but somehow we take the other route so that the other person will also not feel bad, and only the wise person who is able to understand will understand, and it will be still be hidden from the other foolish people. Yes. Okay. Anybody have anything to say? Any other people have something और to कुछ say? ऐड करना है? Amen. We all know. Amen. Amen. Yes, I know you all know it. I know पता तो you all know सबको है, it. So don't worry. चिंता ना करें। So we want to know why Jesus uses story तो to give us a moral lesson. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ हमें अच्छा संदेश देने के लिए दृष्टांतों का इस्तेमाल किया। Why Jesus will not tell you, don't do this directly. He don't tell you, don't do this directly. यीशु मसीह डायरेक्टली नहीं बोलते कि तुम्हें ये उठाना है तो ये उठा लो, But he uses the story to tell लेकिन वो you कहानियों को इस्तेमाल करते or थे the spiritual lesson. ताकि हमें एक आध्यात्मिक चीज सिखाने पाए। Because it takes the special people to understand the story that has moral lesson in it. क्योंकि अगर किसी कहानी के अंदर कोई हमारे चरित्र को, हमारे जीवन को अच्छा बनाने की कहानी है, तो सिर्फ बुद्धिमान लोग ही उसको समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। Amen. Amen. Because when Jesus tells the story, people will say, what is he saying? तो लोग कहेंगे अरे क्या बोल गया ये, मतलब समझ ही नहीं आया, ऊपर से चला गया। But intelligent people और understand. समझदार लोग कहते हैं इशारा ही काफी होता है। So this is what Jesus uses in the New Testament. और जब नया नियम आया, When you go to the New Testament, it's more than 38 parables Jesus uses. आप देखेंगे नए नियम में इतने सारे दृष्टांत भरे हुए हैं। यीशु मसीह दृष्टांतों में ही बात करते थे And he's keep teaching people और उन लोगों को सिखाते रहते थे through stories. कहानियों के द्वारा। Amen. आमेन। And we are going to see some of them, and we are going to share it when we read them. I have few of them, and when we speak it, I want to know what do you understand when Jesus tells a parable. What do you understand? Assuming Jesus was here with us. तो बहुत सारे दृष्टांत यीशु मसीह ने बोले, तो हमारे भाई कह रहे मैं कुछ दृष्टांत के बारे में बात करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा, मतलब बताओ। And he will not be talking the way I'm talking now, which is interpreting. और मैं इंटरप्रेट कुछ नहीं करने वाली हूँ। He will be here telling you stories. अगर यीशु मसीह यहाँ होते वो कोई इंटरप्रिटेशन नहीं बनता, बस वो कहानी बताते और चले जाते। And some people will be sleeping और at कुछ लोग that. कहते हैं क्या बोल के चलेगा, और कुछ लोग कहते हैं अच्छा यही तो नहीं कहना You say, चाहते। oh, let him finish and let's go. और लोग कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहे, खत्म करे और जाए, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। Because to put something in story, you confuse many people. क्योंकि जब आप किसी बात को कहानी में घुसा देते हैं तो उसे आप लोग कंफ्यूज ज्यादा कर देते हैं। But that is the lesson. When you get it, it will change your life. लेकिन Amen? अगर आपको उसका मतलब शीर्षक समझ में आ गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। I will not take time. I want to take today only 30 minutes. Amen? Let's go to Luke chapter 12. हम खोलते हैं लूका 12, Luke chapter 12 from 13 to 21. Amen. लूका 12
12 Luke chapter 12. Luke chapter 12 from 13 to 21. 13 से 21। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। 105 पेज नंबर, नया नियम, लूका 12 का 13 वचन। Luke chapter 12, 13 to 21. Yes. फिर भीड़ में से एक ने 13 to 21. Luke chapter 12, 13 to 21. Yes. लूका 12 का 13 वचन। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारे न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रीति से तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। This is the story Jesus was telling to people. ये कहानी एक दृष्टांत है जो यीशु ने लोगों को सुनाया। What do you understand in this story? अब आप बताएं, आप क्या समझते हैं इस कहानी से? Anybody have something? कोई कुछ बता सकता है तो बताएं। If Jesus tells you this अगर story, यीशु मसीह ने यही हिंदी में आपको सुनाया होता तो आप क्या बोलते हैं? आप क्या समझते हैं? कुछ समझ में आता है? today is a question preaching. आज हमारे भाई कह रहे हैं कि मैं प्रश्न पे प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर देना। And anyone who answers well gets the prize. Amen. वो प्राइज भी मिलने वाला है। Today we are going to make it a question sermon. आज तो क्वेश्चन प्रचार है। What is Jesus speaking through this parable? क्या बोलना चाहते हैं हमारे यीशु मसीह? ईश्वर से बोलना चाहते हैं, जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर लें, दुनिया का सारा धन, सारी संपत्ति प्राप्त कर लें, अगर हमारा जीवन नहीं रहेगा तो किसी काम नहीं। So the whole life we are struggling and we are looking for money. But if we lose our own life, then that money is not going to be useful. Amen. Yes. Any other person? और कोई कुछ बताना चाहता है? Today I'm not going to speak. You are going to speak. हाँ, आज मैं ये कहने वाली बोलेंगे, आप बोलोगे। Yes. Start to crack your brain. We'll see the intelligent. ये कह रहा है, देखिए कौन समझदार बैठा है यहाँ। Listen, we are in the same class today. So we are going to see the intelligent students, those who answer questions in class. So we are going to see them now. Amen. Amen. So what do you understand by the क्या story समझते हैं Jesus said? And how does it relate to our own life? और इसका हम अपने जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे वर्ष पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर से कहते हैं ना कि संपत्ति का लोभ मत करो। तो जब उसे कहते हैं कि किसने मुझे तेरा न्याय करा दिया, वैसा लगता है कि क्या उसे अपना थोड़ा लोभ था संपत्ति का, उस व्यक्ति को। तो परमेश्वर एक बता रहे हैं कि संपत्ति का और किसी प्रकार का लोभ मत रखो, क्योंकि व्यक्ति धन बटोरते रहते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे मतलब एकदम लगते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन जब प्राण निकलता है तो चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। Like we all human beings, we always have greed of having something. So people are always running after money. So, but what we do, we always look for and we run after the materialistic things. And what slowly happens, that slowly we look into these things and we just surround ourselves with these things, and slowly we start forgetting God. Yes, all in the point. 90% IMDb. Any other points? Yes. Any other? I want people. Where is the ladies here? Where is the ladies? अरे ladies कहाँ गई? कोई तो खड़े हो? Amen. इसका मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो गॉड को ऐड नहीं करते। अगर If we do something and we do not add God in that work, वो खाली अपने लिए करते हैं, मतलब कि परमेश्वर को या ईश्वर को वहाँ पे गॉड को ऐड नहीं करते, तो इसका मतलब ये होता है कि हम सेल्फिश हो गए हैं, गॉड को वो चीज़ दे नहीं रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें हर काम में बिल्कुल गॉड को ऐड करना है, चाहे कोई भी ये बाइबल भी कहती है। और कहने का मतलब कुल मिला के यही है, हमें हर
जाते हैं अपनी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो परमेश्वर यही डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहे हैं, मतलब वो सलाह दे रहे हैं कि हमें मुझे ऐड करो तो सूची हो रहा है। So he's saying that we need to add God in our work, but sometimes when we do not consider God in whatever we are doing, so it's that we are getting selfish. Yes. बोलो, Okay? Okay? one lady. Yeah, one lady only. Okay, then stand. Yes. परमेश्वर का वचन हमें ये समझाता है कि हमें अपना मन और ध्यान संसारिक चीज़ों पर नहीं लगाना चाहिए। Yes. इसका मतलब है कि हमें स्वर्ग की धनों की और मतलब अपने ध्यान को लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अनंतकाल का जीवन है और वो जीवन कभी मतलब खत्म होने का नहीं है। तो हमारा सारा फोकस स्वर्गीय चीज़ों के We should always focus on the heavenly things, not on the earthly things. Thank you so much. Thank you. But Lord Jesus Christ, let's start. Let's start. You know, when you want to answer a question most of the times, understand the question. Amen? अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब देना, पहले प्रश्न को अच्छे से समझें। You know, they say, if you don't know the cause of a problem, अगर आप किसी परेशानी की वजह नहीं जानते हैं, then how are you going to solve तो it? उसका हल भी नहीं जान पाएंगे। First, you have to understand what is the cause. पहले समझना पड़ेगा कि कारण क्या है। That's why when you go to the hospital, इसका मतलब जब आप अस्पताल जाते हैं, you say, please, you consult, take this medicine for 1 week, get this test done, let me find out exactly what is wrong with you. तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, आप पहले दवाई लो, जाके पहले देखते हैं कि आपकी परेशानी क्या है, टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे करेंगे। So when they find out, they will understand, are you a diabetic patient? Or are you suffering from any kidney disease? So they can know the right message to give to you. तो टेस्ट करेंगे कि आपको बीपी की परेशानी है, किडनी की परेशानी है, उसके बाद ही वो आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। Jesus came to preach to people. यीशु मसीह आए लोगों को प्रचार करने। One man ran to Jesus from the crowd. एक आदमी भीड़ से भागता आया यीशु के पास। I said, Jesus, यीशु, tell my brother to divide the property with me. मेरे भाई को बोलो ना, अपनी जो प्रॉपर्टी पापा दे रहे हैं ना, आधी कर ले, मुझे आधी दे, खुद आधी रख ले। प्रॉपर्टी। Do you know how many people have died because of property? आपको पता है कितने लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में ही मर गए? No, people believe there is no God, only the God of property. लोगों को लगता है कि परमेश्वर प्रॉपर्टी का देवता है। People want to accumulate, they want to accumulate, they want to accumulate. लोग बस इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। They want to kill in order to take any property. वो एक दूसरे को मारने तक को तैयार है प्रॉपर्टी लेने के लिए। He came to Jesus. और आदमी यीशु के पास आया। Jesus was talking about love. यीशु तो प्रेम के बारे में बात कर He रहे was थे talking about repentance. और पश्चाताप की बात कर रहे थे, But he was not hearing. पर वो इंसान वो नहीं सुन रहा था। He came to the preaching ground with a grudging heart. वो आया, मन में कुछ बुरा रख के वापस वहाँ पर आया। Who knows? He couldn't sleep for whole night because he's fighting the property with his brother. हो सकता है कि वो प्रचार भी नहीं सुन रहा और पूरी रात सोया भी ना हो, रात को पूरी रात लड़ाई कर रहा अपने भाई से प्रॉपर्टी के लिए। Then he's telling Jesus, और उसने यीशु से कहा, go and tell my brother, मेरे भाई को जाके बोलो we must divide that property. प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है मुझे। That is all his heart. पूरे उसके दिल में बस यही था। When he sleeps, जब वो सोता भी होगा, it's all about property. प्रॉपर्टी के बारे में सोचता होगा। So Jesus looked at him यीशु ने उसकी ओर देखा and he began to tell him story. और उसे कहानी सुनाने लगे। But that story have a connotation and meaning. लेकिन उस दृष्टांत का कुछ न कुछ अर्थ था। That story was something that Jesus was trying to tell him. वो दृष्टांत के द्वारा यीशु से कुछ सिखाना चाहते थे। One day this property, एक दिन ये प्रॉपर्टी, you may not even know who will take it from you. आपको ये भी नहीं पता कि जो प्रॉपर्टी के लिए आप लड़ रहे हो, एक दिन वो प्रॉपर्टी किसके पास पहुंचेगी। Jesus was trying to tell him, यीशु ये बताना चाह रहे थे, you might wake up from your house हो सकता है कि अपने घर से आप सुबह उठें and you not even tell anyone you have this property or any document. और हो सकता है कि आपके नाम पे जो जो प्रॉपर्टी है, आपने अपने घर वालों को शायद कुछ ना बताया हो कि प्रॉपर्टी की मेरे नाम पे है, पेपर कहाँ रखे हैं, आप नहीं बताया हो And your soul will be taken away. और आपकी आत्मा परमेश्वर निकाल ले। Where is the property? प्रॉपर्टी कहाँ गई है? Many people have lost their ways to the banks. When you go to the bank, there is thousands of unattended accounts. आप देखिए, अगर आप किसी बैंक में जाए, देख कितने सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिसके मालिक आज आते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है, वो कोई नहीं देखता है अकाउंट में, पैसा भरा हुआ है। When banks use this, come and invest, come and invest. वैसे बैंक कहते हैं आओ पैसा डालो, इन्वेस्ट करो,
निवेश करो, निवेश करो। Total 100% of investment in the bank, maybe 30% they are dead. आप देखें अगर 100% लोगों ने निवेश किया है बैंक में, 30% तो मर गया और पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। Next of kin, they don't even know. कितनी सारी चीजें लोगों को पता भी नहीं है। Some people don't even know that their brother or sister have account with this bank. कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मेरे भाई या बहन का इस बैंक में अकाउंट है। The bank will put the money in dormant, the account in dormant, and they will be using the money for business. बैंक तो पैसा यूज डाल दिया, उसको डॉलर में कन्वर्ट किया और इस्तेमाल कर रहा है व्यापार करने में। They will borrow us, they will take interest from us. पहले तो हम पैसा लिए और ऊपर से फिर इंटरेस्ट भी भर रहे हैं हम लोग। The owners of those accounts have gone. हो सकता है कि उनके मालिक मर भी चुके हों। Many people, they went out wearing lots of gold, millions and thousands of gold. कई लोग घर के बाहर निकलते हैं, बहुत सारा सोना चांदी गले में कानों में पहन पहन के निकलते हैं। When you die on the way, अगर आप रास्ते में मर गए, people take your gold. आपका गोल्ड सबसे पहले चोरी होगा। They leave your smelling cups. वो कहेंगे इस बदबूदार शरीर को तो छोड़ो, सोना निकाल लो। They will take it. ले लेंगे। When you wake up and start to fight, give me back my क्या gold. आप मर चुके होंगे तो जागोगे? नहीं नहीं, मेरी चेन मत उतार, मेरी चेन मत उतार, बोल पाओगे? That's what Jesus was trying to tell him. यही चीज यीशु उस व्यक्ति को बताना चाह रहे थे। What are you fighting for? कि आखिर लड़ क्यों रहे हो? What is this property you are fighting for? किस प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो तुम? Make peace and love. शांति रखो, प्रेम के साथ रहो। How is the parable? The story Jesus tells. ये एक दृष्टांत है जो यीशु ने बताया, But to the foolish people, they will never understand. लेकिन बेवकूफ लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। Because they will not understand what Jesus was saying. लोग नहीं समझ पाएंगे कि यीशु आखिर बताना क्या चाह रहे They हैं। don't understand where the angle Jesus was trying to tell them a वो story. नहीं समझ पाते कि यीशु दृष्टांत में आखिर बताना क्या चाहते हैं। It's vanity upon vanity. आप ये देखें, बेकार पे बेकार। This world has no end, has no understanding. आप ये देखें, दुनिया कोई अंत नहीं है और दुनिया कोई अर्थ भी नहीं है। Have you really, reason about this world and say, why are we here? आप कभी सच में बैठ के कभी दिन में हम लोग, मैं भी, सब लोग 5 मिनट भी सोचते हैं कि आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। You know, the type of power and intention people, put in accumulated property. हर समय हम लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि हम और पैसा कैसे इकट्ठा करें, और पैसा कैसे इकट्ठा करें। As if they're going to live here forever. जैसे कि हम जिंदगी भर यहीं रहने ही वाले हैं, मरने ही नहीं वाले हैं। Even those property, when you sick, you might even sell them while you are alive. हो सकता है कि आपने वो प्रॉपर्टी खरीद भी ली, उसके बाद भी क्या पता आप जीवन भर उसे बेच भी दें। You might lose them while you are alive. क्या पता आप उसकी जिंदा रहते हुए आप उसे खो भी दें। That's what Jesus said in verse 21. इसलिए यीशु कहता है 21वें वचन में, He said, so is he who lays up treasure for himself इसका मतलब जो इंसान अपने धन इकट्ठा कर रहा है and is not rich towards God. वो अंत तक परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है। Amen. That's what Jesus was trying to tell यीशु यही हमें सिखाना चाह रहे थे through the stories. इस But कहानी के द्वारा। when he said he goes, और जब यीशु ने कहा, यीशु ये बोल के चला गया, but he tell the stories to the wise. लेकिन उसने ये कहानी, ये दृष्टांत समझदारों के लिए बोला, Because sometimes Jesus understands the power of story. क्योंकि यीशु को पता है कि दृष्टांतों में, कहानियों में कितना सामर्थ्य है। Because the power of stories we are living today. आप ये देखिए कि आज हम कहानियां सुनते हैं, उसमें बहुत सामर्थ्य हमारे जीवन को बदलती है कहानियां। The story of what your mother told you, आपकी मम्मी ने क्या कहानियां सुनाई, the history of your grandfather. आपके दादाजी का इतिहास, He told you the way you were born, the way you वो were बताते raised. हैं हम ऐसे पैदा हुए थे बेटा, हमने ये किया, The ये story किया, of ये the culture. आप ये देखें हमारी संस्कृति की कहानियां। He understands the power of stories. यीशु को पता था कि कहानियों में बहुत ही सामर्थ्य होता है। In every culture, हर कल्चर में, हर संस्कृति में Hinduism, you transfer that culture through story to your children. आप ये देखिए, अगर आप हिंदू परिवार से हैं तो हिंदुइज्म में भी कितनी कहानियां हैं जो आप अपने आगे आने वाले बच्चों को लोग देते हैं। Because when you tell the story, the children will listen. कि बच्चों को जब कहानियां सुनाते तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं। Amen. आमीन। That is the parable, the power of the parable of Jesus तो Christ. यही है दृष्टांत जो हम मत्ती 12 में पढ़ रहे हैं, जो यीशु ने दिया। And this is the only weapon that Jesus used that even Moses, Abraham, they did not use it. आप ये देखिए, ये एक ऐसा हथियार है जो यीशु ने इस्तेमाल किया कि मूसा और अब्राहम ने भी दृष्टांतों का इस्तेमाल नहीं किया। And that's why Jesus was able to win more souls. और इसीलिए ही यीशु ज्यादा आत्माओं को आज तक जीत रहे हैं। Combined among all the prophets. सारा फायदा ही फायदा हुआ है कहानी सुनाने से। Amen. आमीन।
Let's go to another one. एक और दृष्टांत में चलते हैं. We have two elders here answering. आंसर आपने देना है. Amen. My interpreter also. Amen. So let's go to Matthew. Matthew chapter 21. It's another parable that Jesus used. Matthew chapter 21. मत्ती 21 पेज नंबर 34 नया नियम. Matthew 21 पेज नंबर 34 from 28 to 32. 28. Matthew दो पुत्रों का दृष्टांत. chapter 21 from 28 to 32. पढ़े? पेज नंबर 35. मत्ती 21 का 28 से 32. 28 to 32. दो पुत्रों का दृष्टांत. तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे. उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बाड़ी में काम कर. उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा. परंतु बाद में पछताकर गया. फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा. उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया. इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं. क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसको विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया और तुम यह देखकर बाद में ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते. आमीन. We're going to take only 4 parts. This आज is the हम second 4 one. दृष्टांतों की बात करेंगे. Do anyone understand this? समझ में आया? Jesus was telling a story. यीशु कहानी सुना रहे थे. It's a parable. It's a story he was telling. एक दृष्टांत सुना रहे थे About 2 sons. दो बेटों के बारे में He was telling the story about them. और उनके बारे में कहानी बताई. Like we are here. जैसे हम here. And Jesus was telling the story. जैसे कि हमारे भाई बोल रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं, ऐसे उस समय यीशु बोल रहा था और सब सुन रहे थे. So what do you understand? तो क्या समझ में आया इससे? Yes. Same people. Same people. जो गलती करके पश्चाताप करेगा, Whosoever will repent after doing sin, Yes. वो स्वर्ग में जाएगा. he will go to heaven. Amen. Amen. Clap for him. क्लैपिंग करेंगे. Yes. और कौन बताएगा? Yes. उस समय जो फरीसी थे, जो फरीसी होते हैं, तो परमेश्वर को पता होता है कि सिर्फ मुंह से मेरा नाम लेते हैं, निकाल करते हैं. सिर्फ That time there were many Pharisees who used to say the name of the Lord and they used to say that we believe in God, but only through their mouth. Yes. लेकिन दिल से वो परमेश्वर को नहीं मानते. But from their heart they never believed in God. Amen. Amen. Clap for him. Clap for उनके him. लिए ताली बजाओ. Yes. 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 This is what I want. तो लेकिन परमेश्वर ये आगे देते हैं, जैसे कि वो जाते हैं बाकियों के पास, वेश्याओं के पास और चुंगी लेने वालों के पास. परमेश्वर स्टार्टिंग में बांटते हैं. वो पहले तो कह देते हैं कि हम विश्वास नहीं करते, ये बाद में पछताते हैं कि हाँ मुझे करना So चाहिए. when Jesus Christ went and preached to all the prostitutes and tax collectors, and in the beginning they did not know God, but after that they believed in Him, Amen. वो विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर में आना चाहिए. and they also believed and that we should believe in God, that we should come into God, रिपेंट करते हैं and they repented, और परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं. and finally they do the will of God. तो Amen. ये परमेश्वर मसीह ने उन्हें दृष्टांत इसलिए कहा कि तुम मेरा नाम तो लेते हो लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं करते. लेकिन जो मेरा नाम पहले अस्वीकार कर देते हैं या मेरी इच्छा नहीं मानते, लेकिन बाद में आके वही मेरी इच्छा पूरी करते हैं. So Jesus Christ was saying to other people that there are many people who say that they believe in God, but still you do not follow God. But to whom I am going, like I am preaching these days, so they did not believe in God, but now as I am preaching, they are repenting and now they are following me. Amen. 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 This is what I want to hear. To hear the name. तो आपने कील पे थोड़ा मार दिया. The 2 sons. तो दो Jesus भाई. spoke with 2 sons. Fine. तो यीशु मसीह एक दृष्टांत में दो भाइयों की बात करते हैं. This was said. Jesus said, 2 sons, come with me. यीशु ने कहा कि ठीक है दोनों मेरे पीछे आओ. And he said to the father, no, I'm not going to come. एक ने बोला नहीं मैं तो नहीं आ रहा. But later he पर said, बाद में कहते नहीं मुझे जाना ही Father, चाहिए. sorry, I will come with you. ठीक है मुझे माफ कर दो पिताजी. मैं But the जरूर second आऊंगा. one said, yes, let's go. और दूसरे कहते अरे चलो. When the time comes, और जब पता कहता हाँ चलने का समय हो गया आ जाओ. he disappears. मैं तो नहीं जा रहा. So which
which one is the best? तो अच्छा कौन हुआ? Jesus was trying to tell a story. यीशु एक कहानी बताना चाह रहे थे। He brought prostitutes उन्होंने वेश्याओं के बारे में बात किया, to those that we call the non-believers, या जिनको आज हम कहते हैं अविश्वासी, to those who call murderers. या जिनको हम कहते हैं जो खूनी है। Jesus said, यीशु ने कहा, do you know that even those that we call prostitutes, they are more better than all of us? यीशु ने कहा कि तुम जानते हो जिनको हम व्यभिचारी या अविश्वासी कहते हैं वो तुम सबसे बहुत बेहतर है, Because they tell you who they are. क्योंकि वो सच बोलते हैं कि हाँ मैंने They व्यभिचार don't किया। lie. They don't वो hide झूठ नहीं themselves. बोलते, अपने पापों को छुपाते नहीं है, You make mockery of them. और तुम उनका मजाक उड़ाते हो। But to Jesus, लेकिन यीशु they are the best. यीशु कहता वही हमसे उत्तम है, Because some of us are the most prostituted even than them. क्योंकि हम में से कई ऐसे लोग हैं जो उन व्यभिचारियों से ज्यादा व्यभिचार करते भी हैं, But they hide them. पर बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, और घर भी दिखाते हैं। They pretend as if they don't know anything. अरे कुछ व्यभिचार क्या होता है आज तक In शब्द ही front नहीं of the सुना। people, they are so good. लोगों के सामने एकदम पवित्रता ही झलकती You है। know what they said this about prostitute? वो कहते हैं अरे ये व्यभिचार है, हमें तो पता भी नहीं व्यभिचार क्या But होता she है, hides और अपने व्यभिचार को छुपाते हैं and go at night and do. और रात को छुप के व्यभिचार करते हैं, Comes today and carry the और cross. दिन आता है तो क्रॉस पहन के घूमते सबके सामने, Because Jesus was looking at the heart, क्योंकि यीशु उनके दिलों को जांचता है, not at the appearance. उनकी शक्लों को नहीं जांचता है। Appearance deceives us so much. शक्ल तो बहुत लोगों को धोखा देती है आज भी। When you see some quiet people, आप कहीं बहुत चुप रहने वाले लोगों को मत देखो, and when you see some stubborn people, और कुछ जिद्दी लोगों को देखो, you can accuse them of crime. आप सोचो कि जिद्दी लोग बहुत चीखते हैं, ज़्यादा चिल्लाते हैं। That's what Jesus was trying to tell. यीशु यही समझाना चाह रहे थे There are some people that their hearts are good. कि कुछ लोग हैं जिनके दिल तो साफ है। Even Jesus said, He said, no, I am not going. And comes back and say, I'm sorry, I will go. तो यीशु कह रहे थे कुछ लोग हैं जो पहले तो नहीं आते हैं मुझ में, लेकिन बाद में पश्चाताप करके कहते हैं हाँ मैं आऊंगा आपके पीछे। Because those people, they mean every word that they say. क्योंकि वो जो लोग पहले मना करके हाँ करते हैं, उनके हर एक शब्द को जो कहते हैं वो ही करते हैं। When they give you a promise, they keep it. अगर उन्होंने एक वचन दे दिया तो उसको जरूर पूरा करेंगे। That is who Jesus Christ loves. और यीशु को ऐसे ही लोग पसंद है। That the people they will make you to be feel so happy और वो लोग आपको बहुत आनंदित करते हैं। when they see you a problem. कुछ लोग हैं जो आपको परेशानी में देखते हैं, My friend, what is the problem? क्योंकि अरे भाई क्या हो गया कल You say, I never pay my rent, it's 10,000. वो कहते हैं अरे मैं अपना रेंट 10,000 रुपए नहीं भर पा रहा हूँ। Oh, is that why you're crying? इस तरह रो रहे हो क्या? Oh, clean your ears. अरे आंखों के आंसू को पोंछो। Call me tomorrow 4 p.m. I will give you. कल सुबह 4 बजे कॉल करना, मैं देखो तुम्हें सारा पैसा दे दो, तुम रेंट चुका I'm दो। so happy. वो कहता है अरे भैया तो बहुत अच्छे And हैं। you call them. और आपने 4 बजे कॉल किया, They don't pick their calls. फोन ही नहीं उठा रहे। You call them the next day. आपने अगले दिन फोन किया, They will not pick their फोन calls. ही नहीं उठा रहे। When they see you coming from this और way, आपको दूर से आते देखा, they will move from this way. साइड से निकल जाएंगे। You never even ask them of money. आपने तो पैसा मांगा भी नहीं है, They can promise. उन्होंने वचन तो दे दिया। They can tell I will do this, I will do वो that. बहुत बड़े आराम से सकते हैं, मैं ये करूंगा, But when it comes to action, लेकिन जब करने की बारी आती है they will disappear. वो गायब हो जाते हैं। That's what Jesus was trying to tell us. तो यीशु आज हमें यही बता रहे हैं Be the light. कि ज्योति बने, Be the light that people will see you. ज्योति ऐसी बने कि जब लोग आपको देखना चाहें, Don't be the dark and at the same time you are light. लेकिन अंधकार और ज्योति एक साथ ना बने। Amen? हमें That's what Jesus was trying to tell us through this parable. और Amen? इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह हमें यही सिखाना We see चाहते हैं। how the third parable. Amen? अब तीसरे दृष्टांत की ओर जाते हैं। So Matthew chapter 21, 7 verse. We are going to read from 33 to 46. Matthew 21, 33 to 46. अगला पेज कर ले, पेज नंबर 36, मत्ती 21 का 33 से 46 पढ़ते हैं। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बाड़ी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया।
जब फल का समय आया, समय निकट आया, तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी का पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का तो आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बाड़ी के बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए जब दाख की बाड़ी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों की बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बाड़ी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसका फल लाए। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांत को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में ही कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। Amen. This is another story एक और कहानी that Jesus was sharing with them. जो यीशु उनसे बांट रहे थे, Another great story, a parable. एक और दृष्टांत। You know, when we read this, many people even don't understand. जब हम इसे पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग समझते नहीं है इसमें क्या है। Amen. Many people don't understand, right? बहुत सारे लोग समझे That's how Jesus talks. ऐसे ही यीशु बात करते थे। So what have you to say? Anybody have something about किसी this? को कुछ कहना है तो हाथ उठाएं। We have only one more parable before we इसके close. बाद एक और दृष्टांत फिर खत्म कर देंगे। So if you किसको don't समझ say में आया? something, अगर आपने कुछ नहीं बोला, if you don't say something अगर here, आपने कुछ नहीं बोला, so you're not with us. तो इसका मतलब हमारे साथ नहीं बैठे हैं हम। Amen. हमें तो कौन बताना चाह रहा है? A parable that Jesus used. जो दृष्टांत यीशु ने इस्तेमाल किया। To whom Jesus was talking to? यीशु किनसे बात कर रहा था? Amen. Anyone to whom कोई है? Jesus was referring to? लंबे लंबे हाथ खड़े करें। Who are the people Jesus was using this story? यीशु किसके लिए इस कहानी को बता रहा था? क्या कहना चाह रहा था? The people that came the first time. जो लोग आए यीशु को जबरदस्ती करने, They planted the harvest. उन लोगों ने आगे वो And the fruit खेती came करी at the time. और फल आए। Jesus sent the servant. यीशु ने भेजा अपने नौकरों को कि जाओ They killed. और उसको मार दिया लोगों ने। Jesus sent the second one. यीशु ने दूसरे को भेजा, They killed the second one. उसे भी मार दिया। Then Jesus said, "Oh, they तब will यीशु ने कहा, respect my own son." चलो परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं अपने खुद के बेटे को भेजता And हूँ। he sent the son. तब चलो इसकी तो इज्जत करेंगे ये लोग। Oh, अच्छा ये तो he is मालिक the आया है। head. He is the head. अरे मालिक का बेटा तो यही है। He's going to inherit all this. सारी की सारी प्रॉपर्टी मालिक के पास मरने के बाद तो इसी के पास जाने वाली है। When we kill him, when we eliminate him, अगर हमने इसी को मार डाला all this property will belong to तो us. सारी प्रॉपर्टी तो हमारी ही हुई ना। They squeeze and kill him. तो चलो इसे पकड़ो और मार डालो। To और whom Jesus was referring to. इसके बारे में यीशु बात कर रहे हैं। Yes, yes, you can do it. Amen. परमेश्वर उन लोग को इस्तेमाल करना चाहता है जो जिसको संसार के लोग उसको किसी बेकार समझते हैं और उनको लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो जीसस परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं बड़े कार्य के लिए। Jesus Christ used many people who other people consider very weak and they mocked at them, but Jesus really want to use them. Amen. Yes, 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 yes. Like some people. Amen. इस दृष्टांत में जो गृहस्वामी होते हैं परमेश्वर यहोवा उनको बताया उन्होंने कि ये पिता है, द फादर है और Means the owner of the land is the God Jehovah. Amen. तो कहते हैं कि बार-बार जो लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं वो इजरायली हैं क्योंकि उसका वचन में दे रखा है ना कि वचन सीधा 8:9 में दे रखा है कि वो मिस्र में से एक दाखलता ले आए और उसे दूसरी जगह लगाया कि फल लेके आए। तो
जो इजरायली हैं बार-बार जो लोग हैं उनके सेवक हैं वो भविष्यवक्ता है सारे जिन्हें परमेश्वर ने धीरे-धीरे भेजा। So all the people whom God is sending is all the prophets and all the people that God really want to use. उन्हें उन पापों को बताएं और उनको मन फिराव करें। So that they will also preach the word of God and then people will repent after listening to them. भविष्यवक्ता को इजरायलियों ने विरोध किया और मार दिया। But after listening to many prophets, Israelites killed many of the prophets. परमेश्वर को लगा कि अब इन्होंने मार दिया तो ठीक है लेकिन अपने विरोधी पुत्र को भेजता हूँ। Then Jehovah God decided that okay, now they have killed all my prophets, so now I will send my own son in this world. Respect करेंगे। And I am sure that God believed that okay, these people, Israelites or all the people will respect my own son. लेकिन उसमें कहते हैं कि वो देखते हैं कि जो इजरायली होते हैं वो कहते हैं कि अभी तो एक लोग पुत्र अगर इसे मार देंगे तो हम उसकी विनाश ले लेंगे। तो इसलिए उसमें उन्होंने एक तरह से अपने विषय बताया था कि कैसे अगर मैं सूली पे चढ़ाई जाऊंगा ये दृष्टांत है इसके अंदर। So as they killed the heir to that property, in that way Jesus Christ was telling that okay, this is how I will be crucified. और परमेश्वर ने बताया कि मेरा विरोध भी करेंगे और And they will also oppose. Okay, Bas, bas, amen. that's- Okay, I understand. Amen. Amen. To whom Jesus was referring? यीशु किसको बात कर रहे थे? To people लोगों को। that are pregnant with malice. वो लोग जो गलत और बुरे काम से गर्भवत से हैं। There are people that in their being themselves, they are wicked. जो लोग सिर्फ अपना अपना फायदा सोचते हैं वो लोग बहुत ही बुरे हैं। You know, there are people that don't even have the Spirit of God in them. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है ही नहीं। There are the people that their conscience breathes only wickedness. कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर से जब बात करती है तो सिर्फ बुराई ही उत्पन्न करती है, सिर्फ गलत काम। Because it is only the wicked सिर्फ बुरे ही लोग हैं that will kill the first one, kill the second one, kill the जिसने third पहले one, को मार दिया, दूसरे नौकर को मार दिया, तीसरे को मार दिया and kill the son. और अंत में बेटे को भी मार And if they दिया। have the opportunity to see the father, they will still kill the father. और हमारे भाई कह रहे हैं अगर उनके पास ये अवसर मिल जाता ना कि वो उस प्रॉपर्टी के मालिक को भी दिख लेते तो उसको भी मार ही देते। To those people that Jesus was referring to this story, तो यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं how can you kill? If 4 or 5 people said to you, कि आपको जब 4-5 लोग भेजे गए तो आप लोग कैसे मार दिया? if you are not wicked, अगर आप बुरे कहते हो कि आप बुरे नहीं हो, but Jesus was trying to tell them, लेकिन यीशु क्या बताना चाह रहे थे? wickedness will lead you nowhere. कि बुराई आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगी। Jesus was trying to tell them, यीशु ये बताना चाह रहे थे to whom you are killing, to whom you are persecuting. कि जिसको आप सता रहे हो या मार रहे हो, When I bless him, when Jesus bless him, nobody takes away the blessing. अगर परमेश्वर ने उसको आशीष दे दिया तो कोई उसके आशीषों को ले नहीं सकता है। That is why he closes the story with the stone that the builders rejected. और इसीलिए यीशु ने इस दृष्टांत का अंत ऐसे किया कि जो पत्थर लोगों ने नकार दिया Will stand up to become वही खड़ा होकर क्या बनेगा? the important stone. कि एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण पत्थर बनेगा। Jesus was trying to tell you that you should desist from wickedness. यीशु ये बता रहे थे कि बुराई से बाहर आ जाओ। You see the world is full of wickedness, full of revenge. आज आप ये देखिए इस दुनिया में सिर्फ बुराई और बदला भरा हुआ है। People see killing as nothing these days. लोग कहते हैं मारना कुछ भी नहीं है उनके लिए, किसी को भी That's what मारो। Jesus was telling to तो us. यीशु यही हमें सिखा रहे थे Be careful that you shed no blood. कि ध्यान रखना कि आप किसी को भी खून ना करें। Be careful so that my curse will never be upon you. इसलिए किसी को खून ना करें क्योंकि मेरा श्राप तुम पे ना पड़े। You cannot kill. आप मार नहीं सकते किसी There को is no justification to kill. क्योंकि उसका फिर आपका न्याय के लिए आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। There is nothing that you can say, oh, because he did this. क्योंकि आप कभी ये नहीं कह सकते किसी को मारने के बाद कि नहीं उसने ये किया ना इसलिए मैंने उसको मार दिया। He deserves to die. No. कि ये तो मरने के योग्य ही था इसलिए मैंने मार दिया। That's what Jesus said. तो यीशु ने यही कहा कि नहीं कह सकते हैं। We should desist from being wicked. Rather, we should love people no matter what they do to us. लेकिन Amen? लोग अगर गलत भी करें तब भी हमें उनके साथ प्रेम भाव ही रखना है। I want to go to the last one. हम चौथे दृष्टांत की ओर जाएंगे। Matthew 25, from 1 to 13. This is the last parable we are going to read today, and I will conclude. Make sure you say something.
Make sure you understand this. तो हमारे भाई कह रहे हैं प्लीज कोशिश करें जब हमारे भाई प्रश्न पूछ रहे हैं तो हर एक जवाब दे, चाहे छोटा जवाब दे और समझे भी। I need only short answers. चाहे लंबे आंसर कोई भी ना दे, छोटे आंसर दे, Just give me summary of the answer. What you लेकिन कोशिश करें कि सब जवाब। The Miss Matthew chapter 25 मत्ती 25 from verse 1 to 30. 1 से 13। We are going to close पेज the नंबर Bible 42, with पेज this. नंबर 42, पुराना नहीं, नया नियम। मत्ती 25 1 से 13। From 1 to 30, please. 10 कुंवारियों का दृष्टांत। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर धूले से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियों की भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो। आमीन। Amen. The parable of the wise and the foolish virgins. Amen. तो हम बात कर रहे हैं मूर्ख कुंवारियों की और समझदार कुंवारियों की। Yeah, that was a parable, the story. ये कहानी है। This is story what Jesus was telling. तो यीशु एक दृष्टांत समझा रहे थे, कहानी दे रहे थे। He was telling people who are sitting like the way we are sitting. तो जैसे कि आप लोग बैठे हैं और यीशु मसीह खड़े, जैसे मेरे भाई खड़े हैं और वो सब कुछ बता रहे हैं। People were waiting when Jesus would say, repent, love your neighbor as yourself. तो जैसे यीशु मसीह बता रहे थे, पश्चाताप करो, अपने दुश्मनों से अपने जैसा प्रेम रखो। He began to tell people story. और फिर उन्होंने एक दृष्टांत बता रहे, कहानी बतानी शुरू कर दी। So people will be fed up. What is he saying? और लोग कुछ कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। What does carrying the lamp? अरे क्या है ये, क्या मशाले पकड़ना, क्या ज्योति, कुछ समझ नहीं आ रहा। I expect him to preach something that is direct to my life. And he's telling us this story. तो हमारे भाई ने हमारे परमेश्वर ने बहुत डायरेक्ट एक स्टोरी बताई, अगर हम इसको समझ पाए तो। So assuming we all are there and Jesus was telling तो us. आप ये समझे कि आप सब बैठे हैं और यीशु मसीह बोल रहे हैं, तो आपने क्या समझा? And you ask us, what did I mean by this और story? फिर यीशु मसीह पूछ रहे हैं, बताओ भाई, मैंने जो बताया कुछ समझ में आया तो बताओ। What is the story all about? Yes. आर्यमन? Yes. परमेश्वर बताना चाहते हैं जो औरतें होती हैं वो शादी के लिए जाती है तो कुछ अपने साथ तेल लेके जाती है, वो कुछ नहीं लेके जाती। तो जब दूल्हा आता है तो जिनके पास तेल नहीं होता वो तेल लेके जाते हैं, जिनके पास मतलब तेल होता है वो अपने प्रिय चला के दूल्हे के साथ चल जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमें परमेश्वर के लिए तैयार रहना चाहिए। should always be ready for God, Amen. क्योंकि हमें नहीं पता कि because we don't know when Jesus Christ will come back. Amen. Thank you so much. और Thank कौन करें फटाफट? you. Yes. ये दृष्टांत परमेश्वर के आगमन का है कि हमें नहीं पता कभी भी आ It talks about the coming of Jesus Christ, because we don't know that when Jesus Christ will come back. Amen. तो जो उन्होंने मशालें बताई है वो एक विश्वास है, और जो ऑयल बताया गया है वो एक त्याग है, मतलब त्याग मान लो और विश्वास में दृढ़ बन So she said that we should be confident in God and we should be ready for God. Amen. ताकि जब परमेश्वर आए तो हम उन्हें So that when Jesus Christ will come back, so we will go with Him. Amen. Amen. और किसी को कुछ बोल रहा है I see the फटाफट? ladies. Clap for them, please. Yes, please. Short. Make it बोलो short. बोलो। Yeah, short. छोटा छोटा। मेरा परमेश्वर ये समझाती है, जैसे कि बहुत से लोग बैप्टिज्म ले लेते हैं और ना तो गुनगुने रहते हैं ना गर्म रहते हैं, ठंडे पड़ There are जाते many हैं। people who take baptism, but still they always remain lukewarm. They neither hot nor cold. जैसे कि भजन संहिता 2 में लिखा है, परंतु वह तो प्रभु व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है और उसे प्रसन्न रहता है। मतलब कि वचन
बताने लगी हाँ। और हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रहो। You should always be ready for God because you do not know when God will come. Amen. Okay. यहाँ पे दो तरह की बात हो रही है। एक मशाल है, मशाल का मतलब बैप्टिज्म, और एक जो तेल है विश्वास की तरह है। अगर आपने मशाल लिया है और बैप्टिज्म लिया है, विश्वास नहीं रख रहे हैं जीसस के सेकेंड अराइवल तक, If you are carrying the lamp, which means you are baptized, but you do not have faith, which means you do not have that oil. तो फिर जब जीसस आएंगे सेकेंड जब So अराइवल when होगा, Jesus Christ second arrival will be there, Yes. तो फिर इनके साथ वही जाएगा जिसके साथ विश्वास हो, जो so विश्वास से all those people, not who are baptized, but all those people who believe in Him, they will only go with Him. Amen. 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 All. Yes, yes. I love those that are dead. Amen. ये थोड़ा सा समझ में आया और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि दुल्हन के संबंध में परमेश्वर को लेने आए हैं तो तैयार रहते हैं। We are like bride and we should always be ready for God. Amen. और ये बच्चे में लिखा भी है ये जागते रहो कि अपनी Always be ready, as the last verse says, तो यहाँ से because we do not know when Jesus Christ will come. Amen. Amen. But the answer of this version, you can find it in verse 8. Amen. 8वें वचन के अंदर आप इसे देख सकते हैं। You can find it in verse 8. Can somebody read verse कोई 8? 8वां वचन फटाफट पढ़ सकता है? I want to read both in Hindi and English. Verse 8. हिंदी और only. इंग्लिश में दोनों में फटाफट। कोई पढ़ सकता है हिंदी और इंग्लिश में? Just only verse 8. I want Verse somebody to 8. read. Yes, Verse 8. Verse 8. Verse 8, the foolish say to the wise, give us some of your oil, for the lamp are going out. Amen. In Hindi, I हिंदी want में भी that. पढ़ो फटाफट। जैसे आप और उन्होंने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। That is the answer that यही Jesus जवाब Christ है जो said. यीशु मसीह देना चाह रहे थे The wise and the foolish. कि समझदार और बेवकूफ People tend to attach their life to others. लोग दूसरों पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। Give मुझे me. दे दो, मुझे दे दो। You are the cause of my life. कि अरे तुम ही मेरे जीवन का कारण हो। I am not progressing today is because of you. मैं अगर अपने जीवन में उन्नति नहीं कर रही उसका कारण तुम हो। You, both of you, the wise, we are going the same journey. समझदार और बेवकूफ एक ही रास्ते में जाकर उनका एक ही सफर है हमेशा। Why can't you take all that you needed for that तो journey? अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चाहिए तो आप खुद क्यों नहीं मेहनत करते Why हैं? you hoping that somebody is going to give you? आप ये क्यों सोचते हैं कोई और आएगा मेरी मदद करेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा? Why you hoping you will see someone to borrow? आप ये क्यों सोचते हैं किसी और से उधार लूंगा तो ही आगे बढ़ पाऊंगा? Why can't you take all that you needed for that जो journey? आपको चाहिए आप वो खुद क्यों नहीं लेते हैं? Because you don't know when you are going to come back. क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप वापस कैसे आ पाएंगे। Jesus was talking about the foolish people. यीशु मसीह बात कर रहे हैं बेवकूफ लोगों से। They are dependent in the life of वो others. दूसरों के जीवनों में निर्भर है। Everything they blame others. वो दूसरों को हमेशा शिकायत They लगाते blame हैं। others for their failure. अपने असफलता में दूसरों को They blame दोषी others ठहराते हैं। for not getting what they want to जो get. उनको चाहिए अपने जीवन में नहीं पा रहे हैं उसके दोषी दूसरे लोग हैं। Because of you, I am suffering. तुम्हारी वजह से मैं कर रहा हूँ। Because of you, I तुम्हारी वजह से failed. मैं असफल हो गया। Because you are living here, I see you, I don't know what I'm doing. मुझे नहीं पता क्या कर रहा है, तुम्हारी वजह से ही गलत करता जा रहा हूँ मैं। Because you came to my life, that's why my life is not तुम मेरी working. लाइफ में आए हो ना, इस वजह से मेरी लाइफ बेकार हो गई है। People are responsible every time for their failure. लोग हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं अपने गलतियों की वजह से। You are in the same race. और आप भी उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। You know all it takes for the race. आपको पता है कि दौड़ में भागने के लिए मुझे क्या क्या लेके भागना है। If you are driving a car, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, you're supposed to know the kilometer in which you are driving. And whether there is any filling station there. अगर आपको पता है कि गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए और आपको पता है रास्ते के अंदर कोई पेट्रोल पंप नहीं आएगा, You go to the pump, you put 500 rupees. आप पंप में जाके 500 पेट्रोल डलवा रहे हैं And you are traveling more than 60 और kilometers. आपको 60 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करना है। You'll be stuck on the way. बीच में तो अटक ही जाओगे ना, Because you believe it, oh, I was not somebody that takes some petrol. क्योंकि आपको लग रहा है नहीं बीच में रुके किसी पेट्रोल ले लूंगा। Jesus was trying to tell us, यीशु मसीह हमें क्या बता रहे हैं? you are the pillar of your own life. अपने जीवन का खंभा आप खुद हैं। You are the cause of your progress. अपनी परेशानियों का कारण भी आप हैं और अपनी सफलताओं का कारण भी आप ही हैं। Whatever happens to you, it is only you that is अगर responsible. आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी। If you don't let others to destroy your life, how do you destroy your life? अगर आप दूसरों को ये अनुमति नहीं देते हैं कि वो आपके जीवन में कार्य करें तो वो नहीं कर पाएंगे।
if you don't know what you want and what you don't want, अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए मुझे क्या नहीं चाहिए, if I come to your own house अगर हमारे भाई आपके घर आ जाए and I knock at your door, और वो आपके घर में खटखटाएं, if you don't open, will I come in? अगर आप दरवाजा ही नहीं खोलेंगे तो अंदर घुस पाएंगे? It is only when you open the door for me, ये तभी होगा जब आप दरवाजा इनके लिए खोलेंगे, तभी उस घर के अंदर घुसेंगे, that is only when I come inside. तभी आप आएंगे अंदर। But as long as the door keeps remain shut, लेकिन जब तक दरवाजा बंद है, कुंडी लगी है, I will never come. हमारे भाई अंदर नहीं घुस सकते। So you are the author of your own तो life. ऐसे ही अपने जीवन का दरवाजे की चाबी भी आपके ही हाथ में है। Take away the notion that your life depends on someone. इस चीज को भूल जाए कि दूसरे के जीवन से मेरे जीवन में कुछ होगा। Take away the notion my parents is going to help me. ये चीज को भूल जाए कि मेरे माता पिता मेरी मदद करेंगे तो ही मैं आगे My बढ़ूंगा। friend will help me. मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा ना तो मैं कुछ कर पाऊंगा। My friend will help me write my exams. मेरे दोस्त मदद करेगा मेरे एग्जाम में लिखने के लिए। You can do it. आप खुद भी कर सकते हैं। Because people think themselves they are foolish. और लोग सोचते नहीं मैं बेवकूफ हूँ ना, मेरा दोस्त समझदार है वो मदद करेगा। That is why Jesus Christ used the word. और इसलिए यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया इस शब्द का The foolish and the कि wise. बेवकूफ और समझदार। How do you know that they're foolish? आपको कैसे पता वो बेवकूफ थी औरतें? There is no foolishness written in their foreheads. उनके सरों के ऊपर क्या हमें बुद्धि बेवकूफ लिखा All था। of them are human beings. हम सभी इंसान हैं, They dress so well. हम सभी अच्छे कपड़े पहनते So हैं। how do you know which ones are foolish? आप किसी को देख के कैसे बताएं कि कौन बेवकूफ कौन बुद्धिमान? Jesus didn't write you are foolish. यीशु मसीह ने क्या हमारे माथों पे लिखा ये बुद्धिमान ये मूर्ख? You had a lamp आपके पास एक मशाल है, that needs an oil. आपको पता है उसमें तेल डालना ही पड़ेगा अगर आपको लौ जलानी है। Because they forgot to take the oil. लेकिन वो औरतें जो तेल ले जाना ही भूल गई, That is different between the wise and the foolish. उसी से उनको अंतर हम कर पा रहे हैं कि कौन बुद्धिमान और कौन मूर्ख। It is not you yourself. तो ये आप खुद नहीं है, Tomorrow also you can become wise. तो आप कल भी समझदार बन सकते हैं। When you remember to take the oil, अगर आपको याद आता है अरे हाँ मुझे तेल लेना है, you have killed in the queue of the wise people. तो आप समझदार लोगों के पास जाते हैं और सोचते हैं कि उनसे ले लें। It is not about yourself. आप खुद सोचिए, आपके ऊपर नहीं है। It's about your actions. आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, लेकिन क्या करते It's हैं। about your way of life. आप किस तरह से अपने जीवन को You जीते हैं। can change them. आप अपने आप को अपने जीवन को बदल सकते हैं। Don't condemn yourself. अपने आप को ना नकारें। It is what is in you that you need to change. आपको खुद पता है कि मुझे अपने जीवन में क्या बदलना It है। is not what is outside. ये नहीं जो बाहर से दिख रहा है। So the difference between the foolish and the wise तो अगर अंदर क्या है मूर्ख और बुद्धिमान, is not they themselves. ये वो खुद नहीं It's पर the actions. वो क्या करते हैं वो इससे पता लगता Although you may be foolish today, है। हो सकता है कि आज आप तो मूर्ख हैं, but when you do the right thing, लेकिन अगर आपने सही काम को किया, you can still come आप समझदार भी बन सकते of हैं। the wise people. आप बुद्धिमानों की लिस्ट में आ That's the सकते story हैं। of Jesus. तो यही यीशु मसीह आज बता रहे हैं। And this story is what you and I needed. और इसी कहानी की आपको और मुझे बहुत जरूरत है। And that is the story that Jesus wants us to be telling. और यीशु मसीह चाहते हैं कि इस कहानी को हम समझें और औरों को भी समझाएं। We tell it to ourselves every day. अपने आप को हमें रोज ये बुद्धिमान और मूर्ख की कहानी सुनानी है। Amen. आमीन। Now we have finished the parable. चलो दृष्टांत I want to खत्म। close. The parable of Jesus is gone. दृष्टांत खत्म। The parable of Jesus is gone. यीशु में दृष्टांत खत्म हो गए। And Jesus said these parables thousands years back. यीशु मसीह ने ये वाले दृष्टांत हजारों साल पहले कहे थे, But we are teaching this today. We पर are हम reading इसको आज हम पढ़ रहे हैं, हमें जरूरत भी आज है। what happened thousands years back. जो हजारों साल पहले है उसकी जरूरत आज भी है। And the story today तो आज की कहानी is that Jesus not still telling the stories in the present day. तो समझे कि यीशु मसीह आज भी वही कहानी हमें बता रहे हैं। The answer is yes. तो इसका जवाब Jesus is still telling story even till today. यीशु मसीह ने जो कहानी आज से हजारों साल पहले हो रही थी आज भी वो यही सिखा रहे हैं। But the story becomes personal. लेकिन आज वो कहानी उन्होंने पब्लिक में आज हमसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से ले पा रहे हैं। It's no more coming and preaching to me. ऐसा नहीं कि यीशु मसीह अब भीड़ में बता रहे हैं, लेकिन हमसे एक एक जन से बात कर रहे हैं। Jesus tells you story in your heart every day. यीशु आपके दिल में आपको हर रोज एक कहानी बता रहे हैं। Jesus tells you stories through dreams every day. यीशु सपनों के द्वारा भी आपसे बात करते हैं। Jesus gives you sign of life every day. यीशु आपके जीवन में रोज आपको अलग अलग चिन्ह देते हैं, But the foolish don't understand. लेकिन बेवकूफ नहीं समझते हैं। He tells us stories. वो हमें हर रोज अलग अलग तरीके से बात करते हैं। When you want to do something that is wrong, अगर आप कुछ जो गलत है वो आप करना चाहते हैं, He comes to you. परमेश्वर आपके पास आते हैं, He talks to you. आपसे बात करते हैं Why do you want to do this? कि क्यों करना चाहते हो ये?
But to show our stubbornness, लेकिन हम अपना जिद्दीपना दिखाने के लिए often the time we suppress that voice. हम कहते नहीं परमेश्वर तो बात ही नहीं कर रहा। अरे Just a नहीं, dream. अरे अपना ही तो था, कुछ मतलब नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो, भूल जाओ। We tend to suppress them. हम परमेश्वर की आवाज को दबा देते हैं। He comes back to tell you the story. यीशु मसीह हमसे बात करते हैं हर रोज, But we fail to understand. लेकिन हम ही नहीं समझ पाते। The parable of Jesus still तो exists यीशु मसीह की दृष्टांत आज भी है हमारे पास, in our lives. हमारे जीवन में। When we sleep, जब हम सोते हैं He comes and shows us many things. वो हमसे बात करते हैं और हमें बहुत चीजें दिखाते हैं। People here, when they sleep and have dreams, जब लोग सोते हैं और सपने देखते हैं they just wake up और उठते हैं and they go. और काम करने लग जाते They can't even pray. हैं। वो प्रार्थना तक नहीं करते उस सपने के They लिए, can't even kneel down and say, God. वो ये भी नहीं कहते परमेश्वर का जवाब बताओ। Even when you don't understand, अगर आपको उसका मतलब भी नहीं समझ आया, God, I don't know the meaning परमेश्वर of को this. इसका अर्थ नहीं समझ आया, But if this dream पर अगर ये सपना is meant for my ये destruction, मेरे नष्ट करने के लिए है, God, please protect me. प्लीज मेरी रक्षा करना। But if it is meant for my blessing, लेकिन अगर ये सपना मेरे आशीष देने के लिए है, uplift the dream. तो मैं इस सपने में विश्वास करता हूँ। You destroy the bad, the negative side of the dream, आप सपने के नकारात्मक चीज को नष्ट करना चाहिए and you claim the good side of the और dream. आप इस बोले कि इस सपने का अच्छे चीज को मैं लेती हूँ। When some people wake up, they say, "Oh, it's dream." और लोग उठते कहते हैं ये सपना आया था। Some people say, "Oh, leave it." Some Correct. people maintain, "Yeah, I'm having depression." अरे कोई किसी को बताऊंगा वो कहेगा डिप्रेशन में है, यार That भी is सब why छोड़ दे। sometimes God talks you through depression. परमेश्वर डिप्रेशन के थ्रू भी हमसे बात करते Young people, God talks through depression sometimes. हैं। लोग डिप्रेशन में बात नहीं कर पाते Because when things work fine in our lives, क्योंकि जब हमारे जीवन में चीजें बिल्कुल सही चलती हैं, we tend to forget God. हम परमेश्वर को याद नहीं When करते। you go to your salary and when you go जब to salary मिलती work है, and your salary was increased, अरे सैलरी बढ़ गई, or your business is booming, अरे बिजनेस बढ़ गया, people tend to concentrate much. तो सारा ध्यान उसी पे आने लग They जाता है। even forget when they wake up they should pray. उनको ये भी याद नहीं रहता कि उठ के सबसे पहली चीज प्रार्थना होनी चाहिए। अरे टाइम हो गया, छोड़ो। So I have business to catch. अरे आज तो बिजनेस का बहुत बढ़िया Just पॉइंट है। wake up, you when you run, उठते हैं फटाफट तैयार होते निकल जाते हैं, when you forget, you might not even come back. पर आप भूल जाते हैं कि शायद आप वापस भी ना आ पाए। That's what Jesus is trying to tell you and I. यीशु मसीह आज आपको और मुझे यही सिखा रहे हैं। I'm still speaking to you. वो आपसे आज भी बात करते हैं। Those stories that I tell in those days, जो कहानी यीशु मसीह ने आज से 2022 साल पहले बताई है, although I may not be physical telling you the story, या आज हमारे भाई एक फिजिकल रूप में भी आपको ये कहानियां बता रहे हैं, but I will be in your mind every second, every पर hour. परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे दिमाग में हमेशा मैं हर सेकंड रहता हूँ। I will be telling you मैं how to तुमसे बात live your करता life. रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि जीवन को When कैसे you जीना want है। to do something wrong, I will be there telling you to अगर आप तुम कुछ गलत करना चाहोगे, करने वाले होगे, तो मैं तुमसे बात जरूर करूंगा कि मत करो, do not kill, मत मारो, do not destroy people. मत करो नष्ट What you इसको, are about to do, what you are जो तुम करने planning वाले to हो मत करो। do, I will still talk to you मैं तुमसे बात करूंगा when it's wrong. कि जब कुछ गलत तुम करने वाले हो। That's why sometimes इसलिए कई बार ऐसा होता है Jesus talks to us यीशु also मसीह हमसे बात करते हैं through goosebumps. जब हमें रोंगटे खड़े हो We जाते want हैं, to do something. हम कुछ करने वाले होते Your हैं skill changes. और आप देखते हो कि शक्ल बदल That is गई, still आपके the पास खड़े parable हो। of Jesus. ये भी यीशु का एक दृष्टांत ही तो है। You stay fearing. आप डर रहे हो उस काम को करने से पहले, Still speaking in so many यीशु बात ways. कर तो रहा है, His parable is still alive. उनके दृष्टांत आज भी जिंदा है, But it's only the wise लेकिन सिर्फ बुद्धिमान that लोग ही will समझ still पाएंगे, understand जो समझेंगे that God is still कि speaking. परमेश्वर तो बात कर रहा है God मुझसे, is still telling me परमेश्वर stories. कह रहा है मुझसे। Sometimes let's watch something that speaks in us. कई बार आप देखिए हमारे अंदर जब कोई चीज बात करती है, Let's not always suppress them. उस आवाज को हमेशा दबाना दे, Let them speak. बोलने दे, They will still tell you the truth. वो आपको सच्चाई ही बताएगी। You know you're on the right side. आपको पता है आप सही जगह पे And हैं, that is the best friend. और वो सही चीज है, परमेश्वर एक सच्चा Because मित्र है, those words comes out of nothing. क्योंकि वो आवाजें ऐसा नहीं कि कहीं से भी आई Those है, words comes out of benefit. लेकिन वो हमारे फायदे के लिए आवाजें आई If हैं। I'm your friend, I can talk to you because of what I will get from you. अगर हमारे भाई आपके मित्र हैं तो वो आपसे बात करेंगे कि उनको लगेगा आपसे कुछ फायदा उन्हें हो सकता है, I will take my time to come to you because after advising you, you may give me something. तो हो सकता है ये सोचे कि अरे मैं इसके जाऊंगा, इसको समझाऊंगा तो मेरा कुछ फायदा हो जाए, Not like that. पर ऐसा परमेश्वर काम नहीं करता। The conscience requires nothing. पर हमारा विवेक हमसे कुछ भी नहीं पैसा चाहता, He does his work every time in वो हर समय आपके अंदर और मेरे अंदर काम करता है। It's time.
you recognize those voices. पर ये समय अब वो आ गया है कि आप उस आवाज को पहचाने। I know whenever our actions are not right, जब भी हमारे कार्य अच्छे नहीं होते, those voices come to वो बात करती है आवाज हमसे, they ask us questions. प्रश्नों के जवाब देती है, Sometimes we don't even answer लेकिन हम जवाब हम वापस में नहीं देते, because we don't see a second person standing. क्योंकि हमें लगता है कि साथ में खड़ा तो है नहीं, तो उस आवाज की हम इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। Oh, I'm seeing only myself. वो कहते नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं ही तो हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कर लो। But somebody is not standing physical that you can see. क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कोई हमारे साथ में नहीं खड़ा होता, तो इसलिए हम गलत काम फटाफट कर देते हैं। We only listen when people come and scold at us. लेकिन जब कोई आके हमें ऊपर डांटता है, हम तभी सुनते We हैं। only take it serious because somebody is standing physically. हम बातों गंभीर तभी लेते हैं जब कोई व्यक्तिगत रूप में आके हमारे सामने बात करता है, That's when you take it serious. और इसे He सीरियस told me this, she said this to me. और गंभीर ले लेते हैं। अरे उसने मुझसे ऐसे बात करी, ऐसे I'm बोला, not happy or you मैं are खुश happy. नहीं हूँ या मैं खुशी हूँ, खुश हूँ। But the invisible is the power. लेकिन आप ये देखिए, जो चीजें अदृश्य है उन्हीं में सामर्थ्य है। The parable of Jesus is the power. यीशु मसीह के दृष्टांतों में सामर्थ्य है। Let's see the verse, the concluding verse हम अंतिम that वचन पढ़ेंगे Jesus teaching us जो यीशु ने सिखाया। stories. इन वचन Acts of the Apostles chapter 3 verse 19. प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 19वां वचन। You take this home. इसे आप घर लेकर जाएं। Acts of the Apostles 3 verse 19. पेज नंबर Acts 3. 188, Acts of the Apostles 3 verse 19. 3 का 19। प्रेरितों के काम 3 का 19। पेज नंबर 3 का 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। Amen. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out. That's what Jesus always speaks to us. यीशु मसीह हमेशा हमसे यही बात करते He never condemn you because you're a sinner. हैं। वो आपको इसलिए नहीं नकारते क्योंकि आप पापी हैं, But He always wants you to come out from where you are लेकिन वो हमेशा ये चाहते हैं कि चाहे हमने कितने ही पाप करे उससे बाहर आ जाए, and do the right thing. लेकिन अब सही काम करना शुरू That's the करें। parable of Jesus. यही यीशु मसीह का दृष्टांत So का let's अर्थ go है। to Luke chapter लूका 17, 7 का 3। 3 to 4. Luke 17, 3 to 4. 113 पेज नंबर 113 नया नियम लूका 17 का 3 और 4। Luke 17, 3 to 4. लूका 17 का 3 और 4। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। Amen. That's what Jesus talks to us. यीशु मसीह आज हमसे यही कह रहे हैं To forgive people, कि लोगों को माफ करें, to forgive your brother. अपने भाइयों को माफ करें, In whichever way that you have wronged you. चाहे उन्होंने आपके लिए कैसा ही गलत क्यों ना किया हो। The conscience keep saying to us, लेकिन हमारा विवेक हमसे बात करता रहता है। others are still saying, no, I will not forgive you. लोग तो बोलेंगे नहीं नहीं माफ मत करो, माफ मत करो, This time I will never forgive इस you. बार तो पक्का ही माफ नहीं करने But वाले। the Spirit will keep लेकिन telling परमेश्वर की you. आत्मा बात करेगी माफ कर दो, Because there is more to gain when you forgive. क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होता है, Because forgiveness is not so easy. क्योंकि माफ करना आसान नहीं होता है। When you achieve that, there is more to gain. Amen. क्योंकि आपको पता है माफ करने से बहुत फायदा आपको होगा। Let's go to John chapter 13, यूहन्ना 13 34 to 35. I'm 34. concluding. John chapter 13, यूहन्ना 13 John chapter 13, 34 to 35. यूहन्ना 13 का 34 और 35 पेज नंबर 152 152 34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। Jesus said, if you are my disciples, यीशु कहता है कि अगर तुम मेरे चेले हो, boast of who you love. If you are my disciples, अगर तुम मेरे चेले हो so tell me how many people you love. तो मुझे ये भी बताओ कि तुम कितने लोगों से प्रेम रखते हो। You being my disciples depends on who you love, the people that you love. तो अगर आप मेरे चेले हो, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे चेले हो, तो बताओ कितने लोगों से प्रेम रखते हो। Maybe you are my best disciples. अगर तुम मेरे
अच्छे या बुरे When शिष्य you हो, love your enemy. अगर आप अपने दुश्मनों से प्रेम रखते हो, That was the philosophy of Jesus. तो यीशु मसीह यही चाहते थे. The last but not the least, Isaiah 54 verse 10. यशायाह Isaiah 54 verse 10. यशायाह 54 Prophet Isaiah 54 verse 10. का 10वां वचन. Isaiah 54 verse 10. Isaiah 54 verse 10. यशायाह 54 का 10. 875 पेज नंबर पुराना नियम. Isaiah 54 verse 10. चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी. यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है. Amen. These are the words of Jesus ये यीशु मसीह के वचन है, to those who allow to hear my word. जो परमेश्वर की वाचा सुनते हैं. He said the mountain will depart यीशु कहता है कि पहाड़ टल and the जाएंगे, hills will be removed. हर चीज निकल जाएगी, But be sure लेकिन ध्यान रखें, that my kindness will always be लेकिन with you. परमेश्वर की करुणा हम पर से कभी नहीं टलेगी. That is the mercy of Jesus. यही परमेश्वर की दया है. So to you that take the positive voice of Jesus, लेकिन जो लोग परमेश्वर की अच्छी और सकारात्मक आवाज को सुनते हैं, like Prophet Isaiah will say, जैसे भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा His kindness is always with you. कि उनकी करुणा हमेशा हमारे साथ. Sometimes there is actions that you do. कई बार हम कुछ काम करते हैं, It may be so painful to you this year, but next time it might be something that will change your life. हो सकता है कि आज वो चीज इतनी महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन आने के समय में वो चीज अपना जीवन बदल दे. आमेन. Allow Jesus to talk. तो यीशु को अनुमति दे कि वो आपसे बात करे, He will speak for you और वो आपसे बात करेंगे and He will change your और life. आपके जीवन को बदलेंगे. As we listen to the और voice जैसे of हमने God, परमेश्वर की आवाज को may हम His सुनते power रहेंगे, continue to guide and protect तो us. परमेश्वर हमें संभाले रखे. In Jesus Christ. यीशु के सामर्थ्य पर